السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوست، آپ دیکھ رہا ہے ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل دن کی بات۔ آج ہمارا اسٹوڈیو میں بلایا ہے حضرت مولانا محترم اقبال حسین صاحب مدظ اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ۔ حضرت کو بہت محنت کرنے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حضرت کو دعوت دیا ہے۔ ہمارا اسٹوڈیو میں حضرت آیا ہے، اپنا دو چار باتیں رکھیں گے آپ سب کے لیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل دن کی بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں اور جتنے بھی ہمارے سامعین حضرات ہیں، سب سے پہلے میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، ابھی رمضان المبارک کے آج 25ویں رات ہے ہمارے لیے۔ بہت ہی خوشی کی رات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کے آخری عشرہ کے آج 25ویں رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، بس چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی تلاوت کلام اللہ ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک مجلس لگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ ایک بنی اسرائیل کے ایک واقعہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مسلسل 80 سال عبادت کرتے رہے، اور مسلسل 80 سال وہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ بس یہی بات ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ۔ اسی وقت ابھی مجلس ختم ہی نہیں ہوئی، ایک صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا بنی اسرائیل جیسے اتنے لمبے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کیا ہمیں بھی یہ نصیب ہوگی؟ کیونکہ ہمیں تو ڈر ہے اس بات کی کہ شاید ہمارے اتنی لمبی عمر نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی عبادت نہ کر پائیں۔ تبھی اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی کے ذریعہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول آپ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے۔ یہی جو ہم نے سورۃ القدر جو ہم نے تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اے میرے محبوب آپ گھبرائے نہیں، بے شک ہم نے قدر کی ایک رات یعنی کہ رمضان شریف کی آخری عشرہ میں لیلۃ القدر جسے ہم جانتے ہیں، یہ ایک رات ہے، اس قدر میں ایک رات ہے آخری عشرہ میں، جس رات کی عبادت کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آپ گھبرائے نہیں کہ ایک رات ہم نے امت محمدی کے لیے ایسا رات ہم نے بنایا ہے جس رات میں ایک رات کی جاگنا اور ایک رات کی عبادت کرنا اور ایک رات کی مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا، یہ 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو آخر جانتے ہی ہیں کہ آخری امت کے بندے اتنی کمزور ہوں گے اور عبادت کی ہر اعتبار سے کمزور ہوں گے اور دنیا کی معیشت اور دنیا کی مشغولیت میں اتنی مصروف رہیں گے کہ وہ اتنے وقت کہاں نکال پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے بیچ اللہ کے نبی کے ذریعے یہ ایک مبارک مہینے کے آخری عشرے کی یہ لیلۃ القدر کی جو ہمیں ایک بہت بڑا ایک تحفہ کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان اور کرم ہے، ہم جتنا بھی اس کے بارے میں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کہ وہ بہت کم ہوگی بے شک۔ اس کے بعد میرے دوستو بزرگوں، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے چھوٹی چھوٹی میں کچھ باتیں کر رہا ہوں آپ سے۔ ان میں سے ایک مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ العفو، کہ تم درگزر بھی فرماؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بس صرف تلاوت اور تسبیحات اور پھر ذکر اور اذکار میں مشغول رہو، بس اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہوں گے جن کا لیلۃ القدر میں بھی کوئی درگزر اور معافی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اعلان ہے اللہ کی۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 مدمن خمر، یعنی کہ جو مسلسل شراب کی عادی ہو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جو دین کی نسبت سے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے، ان سب خرافات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں کہ بھائی ہمارے اگر بیچ میں ہمارے آس پڑوس میں اگر کوئی ایسی عادت ہو نعوذ باللہ جو مسلسل شراب کی عادی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، اور اس مبارک اور متبرک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو ان جیسے بد عادت سے اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ مسلسل شراب کی عادی ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ بخش نہیں دیں گے۔ ہاں، بخش دینے کی ایک صورت ہے کہ اگر وہ بندہ توبہ کر لے تو ضرور اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمت حق بہانہ می جویت، ایک کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت جو ہے نا، یہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کب معافی مانگ لے اللہ سے اور اللہ درگزر فرما دے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں قرآن اور کتاب میں، حدیث کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت کی جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں بندے کی۔ دوسری بات یہ، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں ان میں سے دوسری یہ ہے جو عاق الوالدین، ایک لفظ آیا حدیث شریف میں، عاق الوالدین۔ عاق کہتے ہیں مسلسل نافرمانی کرنا ماں باپ کی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم نے حفاظت فرمائے۔ بھائی ماں باپ کی نافرمانی تو عام طور سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کسی بات سے اپنے ماں کے ساتھ
या अपने वालिद साहब के साथ किसी बात से हमने नाराज़गी आ गई, बस थोड़ी देर बाद में हमने जाके फिर माफ़ी मांग ली या फिर मना लिया अपने माँ बाप को, वो एक बात है। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है आकुल वालिदैन, यानी कि मुसलसल माँ बाप की नाफरमानी करना, बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों। मुसलसल नाफरमानी में बहुत सारे बातें आती हैं इसमें कि जब से वो होश संभाला है तब से माँ बाप की हर बात में नाफरमानी करना, आखिरकार ऐसा भी वक्त आ जाता है, बहुत सारी जगहों में ऐसा सुनने को मिलता है कि माँ बाप आखिरकार तंग आकर अपने किसी रिश्तेदारों से ये कहते हैं कि भाई या तो हमें अल्लाह ताला उठा ले इस दुनिया से या फिर उनको गारत में डाल दे। अल्लाह अकबर। अपने वालिदैन अपने बच्चों के बारे में ऐसे अल्फाज निकालते हैं माँ बाप। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला माँ बाप की हत्तल इम्कान जितना भी हो कोशिश हो कि माँ बाप को खुश रखें और माँ बाप को राज़ी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाहुम्मा। तीसरी बात यह है कि मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कीना रखना, यानी कि कीना नहीं, बुग़्ज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें किसी से नफ़रत हो गया, बस हम उससे नफ़रत करते हैं, बस इतनी सी बात है, बस हम उससे नफ़रत करते हैं, इतनी सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि मामूली चीज़ है, भाई हमारे समझ में नहीं आया उनकी बात को, या फिर हमें अच्छा नहीं लगता है उनकी बात से, या फिर हम उनकी बात पर या किसी भी काम पर मुत्तफ़िक़ हम नहीं हैं। एक दिल में नफ़रत सा रहता है किसी शख्स के बारे में या किसी आदमी के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोगों की भी बख्शिश नहीं है इस रात को, यानी कि लैलतुल क़द्र में। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी, अगर हमारे किसी आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन रिश्तेदारों में कोई भी हो, किसी के बारे में अगर हमारे दिल में नफ़रत है, अल्लाह ताला हम सबको दरगुज़र और माफ़ी की मादा हमारे अंदर अल्लाह ताला पैदा फरमाए और हम सब एक दूसरे को माफ़ कर देने के वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये तो हो गया नंबर 3 बुग़्ज़ रखना, यानी कि अपने अंदर बुग़्ज़ पालना। अल्लाह ताला हमें हिफाजत फरमाए। चौथा नंबर है कीना रखना। इस बुग़्ज़ से भी बड़ा कीना है। कीना कहते हैं ऐसे दिल में ऐसे मतलब शरारती सोच, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम उसके चाल चलन और उसके रहन सहन से हमें इतना जलन पैदा होता है कि हम सोचते रहते हैं कि भाई उसको कैसे नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो मालियाती एतबार से हो या फिर उसके कारोबार के एतबार से हो या उसके चलने फिरने, इसका घर में किसी हालत में भी उसको नुकसान पहुंचाने का जो हमारे सोच होता है उसको कीना कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह की नज़र में कि अगर कोई शख्स कीना रखता हो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अनजान किसी शख्स से, तो उसको भी अल्लाह ताला इस रात को बख्शिश नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिफाजत फरमाए, कीना रखने वाले हमारे दिलों को साफ़ फरमाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल के एक दूसरी हदीस में आया है कि खुज़िल अफ़्व, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दरगुज़र और माफ़ करने को ऐसे पकड़ लो जैसे आदमी लिबास पहनता है। जिस तरीके से आदमी खाली बदन नहीं रह सकता है, उसी तरीके से आदमी को चाहिए कि वो उसको अफ़ू यानी दरगुज़र को माफ़ कर देने को इस तरह आदमी पकड़ ले कि हमेशा माफ़ करने में लगे रहें। किसी ने हमको गाली दिया, बस हमें ऐसा लगना चाहिए कि उसने हमें कुछ कहा ही नहीं हो। इसी तरीके से अगर किसी ने हमें बुरा भला कहा, कोई दूसरा आदमी हमें कह रहा है आके कि भाई तुमको फ़लाँ ने ऐसा कहा वैसा कहा, तुम्हें गाली गलौज किया है, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा कहा है, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि भाई अगर उसने सच कहा है तो अल्लाह हमें बख्श दे, हमें माफ़ करे, और अगर उसने झूठ कहा हो तो अल्लाह उसको हिदायत दे, उसको बख्श दे, उसको माफ़ी कर दे। हमारे अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए, ऐसी आदत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाहुम्मा आमीन। चौथी नंबर पर है कि ये तो हो गया आपका पहला नंबर है मुदमिरु खमरिन, शराब के आदी होना। दूसरा नंबर माँ बाप के नाफरमान होना।
आकुल वालिदैन। तीसरे नंबर है बुग़्ज़ रखना, यानी रिश्तेदारों या फिर गैर रिश्तेदार हो उनसे बुग़्ज़ रखना, दिल में बुग़्ज़ पालना। चौथे नंबर पर है किना रखने वाला, यानी कि बुग़्ज़ से भी थोड़ा बड़ा है ये किना, यानी कि नफ़रत, दिल के अंदर नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। तो अल्लाह ताला हमें इन 4 चीज़ों से हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा और हम सब मुसलमानों के लिए एक दूसरे के लिए दुआएं करनी चाहिए कि भाई इतनी एक हमारे मुक़द्दस एक रात है हमारे सामने। और लैलतुल क़द्र के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस है कि उन्होंने फरमाया कि अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या अल्लाह के रसूल, अगर हमें पता चल जाए कि आज ही शब क़द्र की वो रात है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ूली रब्बना इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। यही दुआ अल्लाह के रसूल ने सिखाया कि आप ये कहो कि अल्लाह, आप तो बख्शिश करने वाला और बख्शिश को आप बहुत अच्छा अच्छे समझते हैं, अच्छी आदत समझते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी इन बातों को और इन चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैला हुआ है, कोरोना वायरस के नाम से जो वबा है। इस वबा की वजह से हमारे अकाबिर की कहना है कि आज तक ऐसा कभी सोचा भी नहीं किसी ने कि ऐसा भी वक्त आएगा कि हम अपने मस्जिदों को वीरान करके अपने घरों में नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, या फिर हमें जुमे की, यहाँ तक कि जुमे की नमाज़ भी हमें मस्जिद में जाने की इजाज़त ना मिले। ऐसा भी वक्त आएगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि ये भी अल्लाह के हुक्म है और अल्लाह के बगैर हुक्म से कोई चीज़ होता नहीं है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होता है और इस बात का यकीन हमारे दिल में होना चाहिए। 100% अगर हमने ये बात यकीन कर लिया, यकीन दिल में डाल दिया कि भाई यही हमारा यकीन है और यही हमारे बुनियादी ईमान का तकाज़ा है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। लिहाजा हमें भी ये इस बात को मान लेना चाहिए कि वाकई ये अभी अल्लाह की तरफ से इस बात को हमें ये इस दिन का सामना करना पड़ रहा है कि हम अपने घरों पे नमाज़ अदा कर रहे हैं, ना मस्जिद में हम जा पा रहे हैं, ना कहीं रिश्तेदारों के घर जा पा रहे हैं या फिर रिश्तेदारों से मिल पा रहे हैं। तो ये भी अल्लाह के हुक्म है। लिहाजा अभी वक्त का तकाज़ा ये है, हमारे अकाबिर और बुज़ुर्गान दीन जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, मुफ्तियान निज़ाम हैं, सभी का एक ही मुत्तफ़क़ा राय है कि भाई इस वक्त जो हमारे जिस मुल्क में भी हो, उस हुकूमत की तरफदारी करना, उस हुकूमत की बातों को मानना, ये हमारे लिए एक तरफ की फ़र्ज़ुल ऐन है। यानी कि हुब्बुल वतनी जिस तरीके से हमारे अंदर होना चाहिए, वतन की मोहब्बत, उसी तरीके से उस हुकूमत की भी मोहब्बत। हमारे कोई भी कानून होगा तो हमें भी उसको उस कानून को बजा लाना है। बिल्कुल। लिहाजा अभी हुकूमत की तरफ से जो ये ममानियत आई है कि भाई मस्जिदों में इकट्ठा होकर इस तरीके से नमाज अदा नहीं कर पाएंगे, तो हमें भी इसको मानना चाहिए। अभी हमारे बुज़ुर्गों का ये भी कहना है, अभी भी हाल ही में हमें बहुत सारे इत्तलात मिली है हमें कि सामने जो हमारे ईद उल फित्र का जो दिन आ रहा है, तो वैसे तो आम तौर से तैयारियां होती है ईद उल फित्र में, अच्छे उम्दा कपड़ा ख़रीदने का, बच्चों को कपड़े दिलाने का, और इसी तरीके से घरों में अपने घरों को सजाने और फिर रिश्तेदारों से मिलने जुलने, ये सब का एक रिवाज होता है ईद में, सभी लोग जानते हैं। तो इस चीज़ से भी हमारे अकाबिर फरमा रहे हैं कि भाई इस चीज़ से भी आप परहेज़ करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो वक्त का तकाज़ा है कि हमें एक दूसरे से हम इतना मिल भी नहीं पाएंगे, या फिर घरों में इस तरीके से बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला से रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे ताकि हम इकट्ठा होकर नमाज़ अदा कर सके बाजमात। हमें ईद की नमाज़ अदा करनी चाहिए, जिस तरीके से हम पढ़ सके, अल्लाह वैसा माहौल पैदा कर और वैसा कोई वक्त को इस तरीके से पलट दे ताकि वो कर सके। तो मेरी दरख्वास्त है सभी भाइयों से, जितने भी हमारे नाजरीन हैं और जितने भी सामीन हैं, सभी से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितनी भी चीज़ों से हमें मना किया गया, हम उन बातों को हम
बजा लाए माने और बेशक आगे मतलब दुआएं करते हैं अल्लाह ताला, वो दुआएं करते रहें अल्लाह ताला से कि हम किस तरीके से अल्लाह ताला हमें इन वबा से हमें नजात दिलाए और तमाम मतलब मुल्क के और पूरे दुनिया के मुसलमानों को और फिर गैर कौमों को भी अल्लाह ताला नजात दिलाए इन वबाओं से। बस इतनी बातें कह के मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे थे हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दिन की बात, और प्लीज़ आप सबसे मैं यह आग्रह करता हूँ कि आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबको भी भेजें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दिन के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।